beautiful brick work. Harappa in the citadel. At Harappa we find as many as 6 granaries. Lothal, a brick dockyard was discovered at Lothal. Kalibagan. In Kalibagan, many houses had their own wells. Okay, very good. Very good. Next question is Aksh. Yes, ma'am. Explain in your words what about the class differences and life of people in Indus Valley civilization. The excavation of various fields of Indian ware civilization give us some indicate of social life of the people. Historical remains of the structural yes as remains of the houses indicate the class difference were present in Harappan society. Yes. A big house would have been occupied by the rich, while a smaller house and 2-room cottages would have been used by the poor section of society. For knowledge about dressing and fashion, we depend on the status and figurines excavated. Okay, good. Excavated. Okay. Okay, so let's move to the next chapter. Next chapter के question answers मैं आपको explain करूँगी. That is chapter number 5, the Vedic age. History का ही chapter है, right? Answer the following in 10 to 20 words. What are the main sources of study of Vedic age? अब Vedic age की बारे में हमें कहाँ से हमने स्टडी करी या हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने स्टडी कहाँ से करी, मेन सोर्सेज हमें बताने हैं. So the main sources of study of Vedic age are literary sources. अब literary sources क्या होते हैं? वो sources जो written form में हमारे पास हैं, जिसे लिखा गया है और उन्हें हमने पढ़ा है और उससे हमें पता चला है. ठीक है, तो ऐसे sources को क्या बोलते हैं? Literary sources like Vedas and archaeological sources like pottery. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि कोई सामान हो, जैसे कोई टॉय हो, पोट्री हो, बिल्डिंग हो, ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है. ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसे हम एज अ स्टेचू, पोट्री, जो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, और जो रिटर्न फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिटरेरी सोर्स. सो दो मेन सोर्सेज होते हैं वैदिक एज की स्टडी करने के लिए. फर्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्स जिसे हम वेदास बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक पोट्री. गॉट इट? ओके, अमृता. Yes, ma'am. Read this answer. The main sources for the study of the Vedic age are the
literary sources like the Literary Vedas source. and the Literary agri- source. lit- lit- literary sources like the Vedas and the agri- agi- Archaeological. archi- Archaeological. archaeological sources like poetry. Pottery. Pot- Okay. Okay. Now, how many Vedas are there? Name them. कितने वेदास हैं, कितने वेद हैं और उनके नाम हमें बताने हैं. There are 4 Veds, namely Rigved, Yajurved, Atharvaved and Samved. Rigved, Yajurved, Atharvaved and Samved. मोहनजोदारो is a place, a kind of city जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी. ठीक है, एक सिटी का नाम है, जैसे कि हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा है, लोथाल, ऐसे ही मोहनजोदारो भी था. ठीक है, ओके. तो ये आंसर पढ़ेंगे वैभव पोरवाल. How many? There are 4 Vedas, namely the Rigved, राजवेद. बेटा स्पेलिंग तो देखो. ऋग्वेद, Yajurved, Atharvaved and Samved. वेरी गुड. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोट्री आर एसोसिएटेड विद द वैदिक पीरियड. अब वैदिक पीरियड में कौन सी तरीके की पोट्री बनती थी या कौन सी तरह की पोट्री वो लोग बनाते थे. तो 2 तरीके की पोट्री बनाते थे वो लोग. पहली है PGW और सेकेंड है BRW. अब PGW का मतलब क्या है? पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर. एंड BRW का मतलब क्या है? ब्लैक एंड रेड वेयर. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी तरह की पोट्री बनाई जाती थी, तो 2 तरीके की बनाई जाती थी. राइट, शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे तो फुल फॉर्म याद रहेगा. पेंटेड ग्रे वेयर्स एंड ब्लैक एंड रेड वेयर्स. गॉट इट? So 2 types of pottery are of great significance that are associated with Vedic period: painted grey ware, PGW, and black and red wares. Okay. Parag Maheshwari, read this answer. 2 types of poetry are of great significance. पोएट्री नहीं है बेटा. पोएट्री तो अलग होती है, कविताएं होती है. पोएट्री तो पोट्री मतलब पोट बनाना, जो हम वास बनाते हैं ना, पोट्स बनाते हैं, Yes, ma'am. उसे बोलते हैं पोट्री. Okay. Poetry are of great significance that are associated with the Vedic period. Painted grey ware, PGW, and black and red ware, BRW. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा. अब ऋग्वेद में रिवर्स के नाम दिए हुए हैं. जैसे हमने 4 तरीके के वेद पढ़े, उसमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेद. ठीक है, अब ऋग्वेद में
जिन रिवर्स के नाम लिखे हुए हैं उनके बारे में हमें बताना है, उनके नेम बताना है, ठीक है। सो द रिवर्स मेंशन इन ऋग्वेद आर सिंधु, जिससे क्या बोलते हैं हम, इंडस रिवर बोलते हैं। सो सिंधु, सरस्वती, सरस्वती जो कि अब लॉस्ट हो चुकी है, मतलब अ काइंड ऑफ ड्राई हो चुकी है, ठीक है। देन गोमती नदी, ठीक है, सिंधु, सरस्वती, गोमती। द रिवर्स गंगा एंड यमुना आर ऑल्सो मेंशन्ड ओनली वंस, गंगा और यमुना का भी नाम है उसमें मेंशन, लेकिन एक ही बार है। सो कौन कौन सी रिवर्स है? फर्स्ट वन इज सिंधु, SINDHU, सिंधु। फिर सरस्वती, SARASWATI, सरस्वती। नेक्स्ट इज गोमती, GOMATI, गोमती। फिर गंगा, गंगा का तो नाम सुना है आपने, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज यमुना, YAMUNA, यमुना। तो इन पर्टिकुलर रिवर्स के नाम उसमें मेंशन है, सिंधु, सरस्वती, गोमती, गंगा एंड यमुना। ओके, तो इस आंसर को नेहा The rivers mentioned in the Rigved are Sindhu or Indus, Saraswati now lost, and Gomti modern Gomal. The rivers Ganga and Yamuna are mentioned only once. ओके, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मेगालिथ्स? मेगालिथ्स क्या है? सो मेगालिथ्स बेसिकली क्या है, मैं एक बार और समझा देती हूँ। जैसे कि जो बड़े बड़े स्टोन्स आपने देखे हैं, बड़े बड़े से स्टोन्स जो इस साइज के, मतलब ऐसे, तो अर्लियर पीरियड्स में क्या करते थे, इन स्टोन्स को ब्लॉक्स में अरेंज कर दिया जाता था, इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर शेप में। सो उसे मेगालिथ्स कहा गया है। और हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। मेगालिथ्स आर लार्ज स्टोन बोल्डर्स ऑफ और ब्लॉक ऑफ रॉक्स। अब मेगालिथ्स क्या है, या तो बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं वो हैं, या फिर रॉक के जो ब्लॉक्स हैं, वो जैसे हमारी रॉक होती, पहाड़ होते हैं, उसके जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं वो होते हैं। अरेंज्ड बाय पीपल, कौन अरेंज करता है? लोग उसे अरेंज करते हैं इनटू अ स्ट्रक्चर, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उसे अरेंज कर दिया जाता है, या मॉन्यूमेंट में। Many megaliths have also been built to mark burial sites. अब बहुत सारी मेगालिथ से क्या बनाया जाता था? बेरियल साइट्स को इंडिकेट किया जाता था। सपोज look at this. Is this board visible to you? ये बोर्ड विजिबल है आपको? ओके, सो इसमें वो लोग क्या करते थे, सपोज ये बड़े बड़े से स्टोन्स हैं, तो इन स्टोन्स को वो पर्टिकुलर ऐसे अरेंज कर देते थे, और यहाँ पर क्या करते थे, जो बॉडी होती थी, ह्यूमन बॉडी को वो बरीड कर देते थे, मतलब दफना देते थे, और ये इंडिकेट करते थे, यहाँ पे आसपास क्या लगा देते थे, स्टोन्स लगा देते थे, जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे उन्होंने बॉडी को इनग्रेव किया है, ठीक है। बेरियल साइट मतलब जहाँ पे उनको इनग्रेव किया जाता, दफनाया जाता था। तो एक बॉडी को यहाँ पे दफनाया जाता, उसके अराउंड क्या, स्टोन्स लगा दिए जाते थे, बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है। समझ में आया? इज इट क्लियर? तो मेगालिथ क्या है? एक ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसे क्या किया जाता था, बैरिड किया जाता था, दफनाया जाता था,
और दफनाने के बाद उसमें आसपास बड़े बड़े से स्टोन्स को क्या कर दिया जाता था, प्लेस कर दिया जाता था, ताकि पता चल जाए कि ह्यूमन बॉडी को यहाँ पर इंग्रेव किया है। ठीक है, समझ में आया? आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। ओके, लाइक पैरामिड, नो, पैरामिड इज अ डिफरेंट थिंग। पैरामिड्स के पहले ये चीज प्रैक्टिस की जाती थी, मेगालिथ्स। ठीक है, हमने पढ़ा है मेगालिथ्स में फैमिलीज को भी बरीड किया जाता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, इस आंसर को कौन पढ़ेगा? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। मोहम्मद अनीस खान। अनीस, unmute yourself. सिद्धार्थ दसरी। आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, जिसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, आप नेट ऑन करके ऑफ कर लीजिए तो नेटवर्क प्रॉपर आएगा। ठीक है, किसने नहीं किया है आप अपना नाम मेंशन करो बेटा, जिसमें रीड नहीं किया है एक भी आंसर। नेहनी, ओके, नेक्स्ट आपसे करवाऊंगी। ठीक है, ओके, तो इस आंसर को रीड कीजिए। Yes, ma'am. Megaliths are large stone boulders or block of rocks arranged by people into a structure or a movement. Many megaliths मॉन्यूमेंट बेटा, मॉन्यूमेंट। Many megaliths have also been built to mark burial sites. sites. Okay, good. Now, how was the Vedic knowledge transmitted? What were the content of each Veda? Now, अब वैदिक नॉलेज को कैसे ट्रांसमिट किया जाता था? जैसे एक जनरेशन है, सपोज कि कोई है, आपके फादर, मतलब जिस टाइम पे वैदिक पीरियड था वहां पे एक दूसरे को वेदास का नॉलेज, वेद का नॉलेज कैसे ट्रांसमिट किया जाता था, कैसे समझाया जाता था, कैसे सिखाया जाता था, ये बताना है। और उसमें क्या है ये हमें बताना है कि वेद, जो हम वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें एक्चुअली था क्या। So Vedic knowledge was transmitted orally from one generation to other generation in the form of 4 Vedas: Rig Veda, Samveda, Yajurved and Atharvaved. अब वेदास क्या थे? वेदास जनरली ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे। ठीक है, और फिर उसे
4 वेदास में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वेदास हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और फिर इनिशियली तो इसे ओरली बोला जाता था, लेकिन बाद में इसे रिटर्न फॉर्म में लिखा गया। इसे बाद में रिटर्न फॉर्म में लिखा गया। They were written down in later period of वैदिक संस्कृत। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? वैदिक संस्कृत में। लैंग्वेज कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में लिखा गया। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 hymns and were divided into 10 parts। अब ऋग्वेदा में कितने हेम्स हैं? हेम्स मतलब भजन। कितने हैं? 1028 हेम्स हैं। और कितने पार्ट्स में उसे डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ऋग्वेदा के बारे में। ठीक है। द सामवेद कंसिस्ट ट्यून्स फॉर प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदा। अब सामवेदा में क्या है? प्रेयर्स है ऋग्वेदा की। द यजुर्वेद कंसिस्ट ऑफ हैम्स एंड रिचुअल्स। अब यजुर्वेद में क्या है? हैम्स और रिचुअल्स है। अथर्ववेदा कंसिस्ट ऑफ सॉन्ग्स। उसमें सॉन्ग्स हैं, स्पेल्स हैं, मैजिकल चार्म्स हैं, टू कास्ट अवे एविल स्पिरिट। अथर्ववेद में क्या है? सॉन्ग्स हैं, स्पेल्स हैं, स्पेल्स मतलब मंत्र, ठीक है, मैजिकल चार्म्स है, टू कास्ट अवे एविल स्पिरिट। समझ में आया? बोलिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम हमने इतने दिन 2 दिनों के अंदर एक भी बार रीड नहीं करा, एक भी आंसर। आपका नाम बताइए। मैम तौसीफ गनी। तौसीफ गनी। मैंने बेटा आपका नाम लिया था, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैम उस टाइम पे हमारे इधर थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओके, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आपका नाम ले लूंगी बस। ओके मैम। तो ये आंसर तौसीफ आप रीड कीजिए। Okay, ma'am. The Vedic knowledge was transmitted orally from generation to generation in the form of 4 Veda: the Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda. They were written down in later period in Vedic Sanskrit. The Rig Veda contains 128 hymns, which are divided into 100 नहीं है, 1000. Yes, ma'am. 1028 hymns, which are divided into 10 parts. The Sam Veda contains tunes for the prayers of the Rig Veda. The Yajur Veda contains hymns and rituals. The Atharva Veda contains songs, spells, magical charms to cast away evil spirits. Okay. Okay, good. Yes. Excuse me, मैम, बोलिए। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। मैम मैम आप जब पर पढ़ाते हैं ना मैम एरो ना मैम, जैसे 4th क्वेश्चन पे रहता है मैम, 5th क्वेश्चन में रहता है मैम, आपकी आवाज भी है ना मैम अटक अटक के आती है। ओके, मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है। और एक बार आप अपना नेटवर्क भी चेक कर लीजिए, कभी आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। मैम ने वो कर लिया। ओके ओके, मैं देखती हूँ, ठीक है। अब आज तो क्लास खत्म होने वाली है, कल से मैं ध्यान रखूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, वेद को इंग्लिश में वेदास बोलते। किसको? वेद को। हाँ बेटा, एक ही बात है, वेद बोले या वेदास बोले, है ना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What do burials of Chalcolithic and Mesolithic cultures tells us? अब
चाल्कोलिथिक एज और मेगालिथिक कल्चर जो था वो हमें क्या बताता है? बेरियल्स टेल अस अबाउट द कस्टम्स। अब बेरियल्स हमें क्या बताती हैं? बेटा सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ओके, अब बेरियल्स हमें क्या बताती है? बेरियल्स किसे कहते हैं? जहां पे ह्यूमन बॉडी को क्या किया जाता था? दफन किया जाता था, है ना, उसे बेरियल कहते हैं। तो बेरियल्स हमें उस टाइम के क्या बताते हैं? कस्टम्स बताते हैं, उनकी प्रथाएं बताते हैं, उनकी प्रैक्टिस कि वो क्या प्रैक्टिसेस करते थे, उनके सोशल सेटअप्स के बारे में बताते हैं, मतलब उनका सोशल स्टैंडर्ड बताते हैं कि वो कितने डेवलप थे, कौन कितना रिच था। जिन बेरियल्स पे गोल्ड की बीड्स मिली है, स्टोन्स, कॉपर बैंगल्स, ये सारी चीजें मिली है, इससे क्या इंडिकेट होता है कि वो पर्सन रिच था। जिसके पास सिर्फ पॉटरी मिली है या कुछ पुअर चीजें मिली, मतलब ऐसी चीजें जो पुअर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, सपोज सिर्फ कॉपर से बनी हुई चीजें मिली है, तो इससे ये इंडिकेट होता था कि वो जो पर्सन था वो क्या था? पुअर था। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एट ब्रह्मगिरी, अब इसमें हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अ स्केलेटन वॉज फाउंड विथ सेवरल गोल्ड बीड्स, गोल्ड बीड्स मिली है, 2 स्टोन बीड्स, 2 स्टोन की बीड्स मिली, कॉपर बैंगल्स एंड कॉन्च शेल, और क्या मिली है? शेल, जो सीप होती है ना, सीप मिली है। वाइल अदर स्केलेटन हैड ओनली अ फ्यू पॉट बेरीड विद देम, अब कुछ स्केलेटन थे जिनके साथ सिर्फ पॉट बेरीड किए गए थे, राइट, सिर्फ पॉट दफनाए गए थे। दिस इंडिकेट्स देयर वाज अ डिफरेंस इन सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल, इससे क्या इंडिकेट होता है कि लोगों के सोशल स्टेटस में भी डिफरेंस था। सम मे हैव बीन पुअर, कुछ उसमें से पुअर थे, while others rich, और कुछ रिच थे। सम मे हैव बीन पीपल ऑफ इम्पोर्टेंस और लीडर, अब उसमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे या कोई लीडर था। Similarly, a collective burial belonging to same period are found. It might indicate a tragedy or some sacrificial ceremony. अब ऐसी भी एक जगह देखी गई है जहां पे बहुत सारी बैरियल्स को क्या किया गया था, मतलब एक साथ बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं। सपोज लुक इट हियर, ये दिख रहा है, थम्स अप। ओके, सो बहुत सारी ऐसी, जैसे सपोज इट्स अ ग्राउंड पीस, ये ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज क्या मिली हुई है कलेक्टिवली, राइट। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये जो बैरियल्स हैं, ये या तो कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई होगी कि एक साथ इतने लोग क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई, या फिर कोई सैक्रिफाइसल सेरेमनी हुई होगी कि लोगों को यहाँ पर सैक्रिफाइस किया गया और फिर यहीं पे बैरिड कर दिया गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ रीड दिस आंसर, कौन रीड करेगा? नेहा। The burials tell Burial. us about the Burial. burial tell us about the customs, practices, and social setups of the people. For example, at Brahmagiri, a skeleton was found with several gold beads, 2 stone beads, copper bangles, and a conch shell, while other skeletons had only a few coats buried with them. This indicates there was a difference in the social status of the people. Some may have been poor while others rich.
some may have been people of importance or leaders. Similarly, if collective burials belonging to the same period are found, it might indicate a tragedy or some sacrificial sacrificial ceremony. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे. अब आपका होमवर्क क्या है? आपको पता है ना आपका होमवर्क क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक लर्न करना है. ठीक है? फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू